इष्टं स्थापितं न भुक्यते स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण Karo, read. Yes. yes Happiness and distress are concomitant factors of material life. One should learn to tolerate as advised in Bhagavad Gita. One can never restrict the coming and going of happiness and distress, so one should be detached from the materialistic way of life and be automatically equipoised in both cases. Generally, when we get something desirable, we are very happy, and when we get something undesirable, we are distressed. But if we are actually in the spiritual position, these things will not agitate us. To reach that stage, we have to practice unbreakable devotional service. Devotional service to Krishna without deviation means engaging oneself in the 9 processes of devotional service: chanting, hearing, worshipping, offering respect, etc., as described in the last verse of the 9th chapter. That process should be followed. Naturally, when one is adapted to the spiritual way of life, he will not want to mix with materialistic men. That would go against his grain. One may test himself by seeing how far he is inclined to live in a solitary place without unwanted association. Naturally, a devotee has no taste for unnecessary sporting or cinema going or enjoying some social function because he understands that these are simply a waste of time. There are many research scholars and philosophers who study sex life or some other subject, but according to Bhagavad Gita, such research work and philosophical speculation have no value. That is more or less nonsensical. According to Bhagavad Gita, one should make research by philosophical discretion into the nature of the soul. One should make research to understand the self. That is recommended here. Okay. Shall I continue? No. So in the previous para bhi पढ़ लिया ना आप लोगों ने? हाँ जी. Okay. So 13th. Where did we find the 13th quality? Total, how many qualities are there? 24. In this verse, in these 5 verses, हमने किए थे ना last time? हाँ. 2, 4, 5, 6, 12, 12, 9. 12 सारा नोट किए थे किए माता थे। जी 12 12 खत्म की थी. 12 हाँ। खत्म की थी. Yes. Detachment from children, wife. That was the 12th one. Then now we have freedom from entanglement with children, wife, home, and the rest, even-mindedness.
Hmm? Okay, so in the previous para, which quality is being discussed? Happiness and distress वाला जो para है. Happiness and distress are concomitant factors of material life. One should learn to tolerate. Are we Be talking? equipoised. So are we talking about tolerance here? हाँ No. माता जी यही है इसमें कि जनरली तो हमें अच्छा ही अच्छा चाहिए. We get something desirable, we are very happy. When we get something undesirable, we are distressed. No, tolerance is already covered. Number 3, Yes. tolerance we've already done. Hmm. So this cannot Right. be tolerance. This is something like remaining equipoised in One any. should be detached from the materialistic way Ah. of life and be automatically equipoised in both the cases. You know? So I think detachment from the general mass of people. No, there are two detachments. Have you already done birth, death, or there? No, we detachment from children, wife, and home has also been done. Yes. So what are we talking about here? Mainly remaining equipoised under Correct. any circumstance of life. Then We we should not have- allow things to agitate हाँ us. हाँ वही है. समचित्तत्व. Unfavorable conditions, circumstances should not agitate us, and similarly, happy circumstances or favorable circumstances also should not shake us from being हाँ steadfast. even mindedness अमर ये वाला है. Yes. So it वही is samachittatvam. हाँ It is samachittatvam, which is equilibrium. है ना? Hmm. So number 13, we can mark that as 13. You're right, Anjali, it is equipoised. In both cases, happiness and distress. Samachitva. Okay, next. Naturally, when one is adapted to the spiritual way of life, he will not want to mix with materialistic men. So I have a question here. It's a fact that whatever is your interest, you would want to associate with those kind of people, right? Party goers would want to keep the company and association of party going people, because if you want to have fun, you need similar kind of company. And people who love food will join food clubs. People who are sports enthusiasts will join sports clubs, hiking, adventure clubs. So similarly, those who are spiritually inclined would want to be in the association of those who are also spiritually inclined, right? Now, the not so spiritually inclined people or the general mass of people say, as well as spiritualists also say, that don't tell me what religion you are following, neither tell me what religion I want to follow. Just show me how you are behaving and how you interact with people, and I will decide whether you're following any religion or no.
Are you getting my point? मतलब लोग ये कहते हैं कि अपना हम आपका आचरण देखेंगे और उससे डिसाइड करेंगे कि आप स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हो या नहीं, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हो then it should reflect in your conduct, in the activities that you do, है ना? So now here it is being said that when one is adapted to the spiritual way of life, he will not want to mix with materialistic men, right? That would go against his grain. So one may test himself by seeing how far he is inclined to live in a solitary place without unwanted association. Naturally, a devotee has no taste for unnecessary cinema going, sporting. Sporting मतलब घूमना फिरना या बातचीत करना या घुलना मिलना विद नॉन स्पिरिचुअल पीपल, जिनका गोल नहीं है हमारा गोल जैसा। उनके साथ आप कितने कंफर्टेबल हो, कितना फ्रीक्वेंटली मिलते हो, हाउ मच डू यू लाइक देयर कंपनी, और एंजॉयिंग सोशल फंक्शंस, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स दैट दीज आर सिंपली अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो यहाँ से आप अपने खुद को ही असेस कर सकते हो अभी आप कितना स्पिरिचुअली सीरियस हो। You don't have to answer this to anyone, but हमारे अपने ही मन में we always wonder ना, कोई हमें बता दे हम कहाँ पहुंचे spiritual life में, on a scale of 1 to 10 हम कहाँ हैं, 1 पे हैं या 2 पे हैं या 4-5 तक पहुंच गए क्या? तो ये मापदंड है, ये मापदंड है कि अभी भी आपको नॉन स्पिरिचुअल फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना अच्छा लगता है, उनके साथ घूमना, आउटिंग्स करना अच्छा लगता है, फैमिली फंक्शंस या जिस तरह के फंक्शंस हैं चाहे फैमिली के नाम पे, yes you have to attend them, don't confuse it with duty. as a duty attend करने जाना एक बात है, और खुश होके जाना, दिन गिनना, कैलेंडर पे मार्क करना और यू नो राह देख देख के जाना अलग बात है ना? कोई मना तो नहीं कर रहा कि नहीं जाना है, लेकिन किस भाव से जाते हो? do you really look forward to it? that shows that अभी भी हम material concept में बहुत ज्यादा हैं, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट में अभी कम है। वो जरा सा वो है, बैंडेड लगा हुआ है, अभी उखड़ भी सकता है कभी भी। this is what he's saying. There are many research scholars and philosophers who study sex life or some other subject, but according to Gita, such research work and philosophical speculation has no value. That's more or less nonsensical. According to Gita, one should make research into the nature of the soul, or one should make research to understand the self. That is recommended here. तो जब लोग कहते हैं कि बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं ना कि घर में तो पूछा नहीं, बड़ों का आदर नहीं किया, बड़ों का ध्यान नहीं रखा, घर वालों के साथ तो अच्छे से व्यवहार नहीं किया, रिश्तेदारों के साथ तो आपने अच्छे से डील नहीं किया, और वैसे आप स्पिरिचुअल लाइफ कहते हो कि हम स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो कर रहे हैं। सो what will be your answer to this? Hare Krishna Mataji. Yes, dear. What I have felt and I have seen, whatever in my life around me, what I have seen is the family, serving family or serving in the family also is very much a part of our prarabdha. That is what I have seen. That is if किसी के अगर प्रारब्ध में है कि किसी को सर्व करना है, जैसे कई बार आपकी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको मतलब अगर आप अनवांटेड भी हैं किसी का तो आपको करना ही पड़ता है, कंपल्सरी हो जाता है उसमें, मतलब आपके पास चॉइस नहीं होती, चाहे आपको अंदर से अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, आपको किसी को सर्व हाँ जी, करना हाँ जी, पड़ता है। ठीक है। तो मेरा एक- मेरा मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, आई थिंक मैंने ठीक से उसको फ्रेज नहीं किया, लेट मी फ्रेज इट अगेन। यू आर डूइंग, वी ऑल डू अवर ड्यूटीज, हम सब कर ही रहे हैं, हम सब फैमिली लाइफ में छोड़ के तो भागे नहीं, सो जाहिर है कि हम अपनी सारी ड्यूटीज कर रहे हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका ध्यान रख ही रहे हैं, जिसकी जो भी नीड है, लेकिन अंदर से
You will avoid more than necessary interaction, correct? जितना Yes, जरूरी है हाँ। सेवा से रिलेटेड उतना ही इंटरेक्शन रखेंगे, हाँ, उससे ज्यादा नहीं करेंगे. फोन उठा के बात करना, उनको कहीं लेके जाना, उनके साथ अननेसेसरी ज्यादा टाइम स्पेंड करना हम नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि हमारा भी एक टेस्ट डेवलप हो गया वेयर वी वुड नॉट वांट टू मिक्स विद मटेरियलिस्टिक पीपल टू मच, because if you are interacting with them means you have to hear what they are talking about, isn't it? यही होता है ना इंटरेक्शन. Yes, मौन व्रत तो कोई रखेगा नहीं, वो अपनी बिल्कुल. किस्म की बात करेगा और फिर he will expect कि आप भी उसमें participate करें. You cannot be rude and you sit. You will also have to respond. So you have to hear and you have to participate. You have to hear Prajalpa and you have to participate in the Prajalpa, correct? फिर वहां पे मतलब हरि भजन तो नहीं हो रहा होगा, प्रजल्पा ही होता है. एनीथिंग दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रजल्पा? जो हरि भजन नहीं है वो सब प्रजल्पा है. चाहे आप न्यूज डिस्कस कर रहे हैं या आप पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं या आप फैमिली मैटर्स डिस्कस कर रहे हैं, एवरीथिंग कम्स अंडर प्रजल्पा. और आप नेबरहुड में कुछ हुआ है वो डिस्कस कर रहे हैं, ऑल ऑफ इट इज प्रजल्पा. So, and materialistic people have this only in their life. I'm talking about family and relatives. I'm not even talking about दूर के unknown people, strangers. So, now on the one hand, they judge you by seeing कि आप कितना interact करते हो, कितना उनके साथ डील करते हो, कैसे डील करते हो. On the other hand, we are hearing that do not mix with materialistic people too much, only as much as is necessary to do your duties. Are you getting my point, what I'm trying to say? So now they are going to come back to you and say that हमारे साथ तो डीलिंग्स अच्छी है नहीं, क्या स्पिरिचुअलिटी कर रहे हो? अच्छी है नहीं का मतलब not that we are neglecting मतलब our ज्यादा duties. मिक्सअप नहीं कर रहे. Exactly. हाँ. टाइम जरूरत से ज्यादा हम स्पेंड नहीं कर रहे. जितना जरूरी है उनको भी समझ में आता है कि जितना जरूरी है उतना ही कर रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं कर रहे. अपने तरह के लोगों में ज्यादा. तो फिर and they are going to naturally brand you and the organization you follow or the people you follow or the concept that you follow. They're going to brand that also as, oh, you are not very हमारे साथ ही dry नहीं kind हो. of. आप हमारे मतलब साथ आप ही बड़े नहीं हो तो dry क्या kind of स्पिरिचुअलिटी? person हो. हम भी भगवान के बंदे हैं, हम भी भगवान के बंदे हैं, सारे भगवान के लोग एक जैसे होते हैं. तो फिर हमारे साथ कम करके दूसरों के साथ ज्यादा करना, what kind of spirituality is this? Now, what kind of bhakti is this? हाँ, अगर आपने if you do love thy neighbor as you love yourself, ये सब चीजें आ जाएंगी. How will you answer that? Or first of all, what is your take on that? My take is very clear, because maybe I am that kind of person that I will not care about such things, and because वही वाली बात है, कुछ तो लोग कहेंगे. नहीं, I am saying जवाब क्या देंगे? उनको जवाब क्या देंगे? How are we going to answer? If they are ready to listen, then my answer would be that it is my consciousness which is very important to me. And if unnecessary discussion on many things, if it affects my consciousness, I would take care of my consciousness first. And I will answer them at that I am still on a journey. I do not claim कि मैं perfect हूँ. मैं भी अपने ऊपर काम कर रही हूँ. One thing is that. दूसरा ये कि मेरे लिए मेरी consciousness ज़्यादा important है. Then कि मुझे लगता है कि मैं अगर unnecessary उसमें participate करने से मतलब I can't handle that कि मैं वो भी कर लूँ और मैं at the same time मैं उनके ध्यान में भी रह लूँ. तो because I am still on my journey, तो मैं ये दोनों चीजें handle नहीं कर सकती. So I have to work upon myself like this. This is my मतलब और and I will try to explain कि जो ये हम सारा टाइम जो दूसरी बातें करते हैं, where is it taking us basically? What is the end result of this? Output क्या है उसका? और इसका आउटपुट तो हमें पता है. आई एम श्योर अबाउट द आउटपुट गेटिंग व्हाट वी आर डूइंग. इसका आउटपुट तो हमें पता है, बट उसका आउटपुट क्या है, उसका हमें क्या मिलेगा अननेसेसरी? तो मेरा आंसर यही होगा कि मेरी कॉन्शियसनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
और ये जो अननेसेसरी डिस्कशंस होते हैं, इसका डेफिनेटली हमारा कहीं ना कहीं तो रहता ही है दिमाग में, फिर बाद में वही आता है जो हम बात करते पूरे दिन में जो हम कर रहे होते हैं, एक्चुअली वो हमारे दिमाग में वही आता है, मतलब उसकी वो रह जाती है कहीं ना कहीं, तो हम वो डिस्टर्ब करती है, मतलब डिस्टर्ब इन द सेंस दैट इट इज एन हिंड्रेंस, इट इज अ हिंड्रेंस। और जो मेरा गोल है, वो गोल इज समथिंग विच आई फील, और हमारे को जो समझाया, शास्त्रों में समझाया है कि ह्यूमन लाइफ का जो एम है, बहुत छोटी ह्यूमन लाइफ है, तो इस छोटी सी लाइफ में हम अभी तक जितना भी जो भी वेस्ट किया है टाइम, उसके अलावा अब जो टाइम बचा है दैट इज टू प्रेशियस, तो वी कांट अफोर्ड वेस्टिंग दैट टाइम, क्योंकि इतना ही टाइम में अभी बहुत कुछ है, ओल्ड एज भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, बहुत कुछ होगा। सो आई रियली डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, क्योंकि गोल जो है हमारा वो है, उसमें हमें अपना वो लगाना है, टाइम उधर लगाना है, एंड टाइम इज लिमिटेड। तो अगर हमने इधर लगाया तो डेफिनेटली उधर कॉम्प्रोमाइज हो गई होगा, और कॉन्शियसनेस पे इफेक्ट आता है, दैट इज फॉर श्योर। दिस विल बी माय आंसर। Nice, very nice. थैंक यू। Others? I'm sure we are all handling this question in our family life, in our personal lives, right? माता जी, जैसे मैंने सुना है लेक्चर्स में कई बार कि हमें उनका संग नहीं लेना है, हमें अपना संग उनको देना है। सो वॉट एवर टाइम वी स्पेंड विद देम, विद आवर कॉन्शियसनेस, वॉट एवर, जैसे हम मॉर्निंग साधना करते हैं, भागवतम क्लास सुनते हैं, तो शायद हमारे फैमिली मेंबर्स हमारे साथ ये सब चीजें सुनते हैं, ऐसा नहीं है। सो वॉट एवर वी, एज यू से कि हरि कथा के बदले बजाय जितना भी होगा, दैट ऑल एवरीथिंग इज प्रजल्प, राइट? सो वी कैन डेवलप आवर टॉक्स इन सच अ वे दैट हमने आज जो दिन भर सुना वो फैमिली को बताओ। सो दैट वे आई एम टॉकिंग अबाउट द नियर क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर्स, जिनके साथ हम रोज उठते बैठते खाते पीते खाना, और फैमिली मेंबर्स जो अदर देन दैट जितने होते हैं, जिनका अगर इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में बात करना है, तो अगर उस सब्जेक्ट पे अगर हम बात करते हैं तो वो दे आर ऑल्सो गिव अस सेम फीडबैक। लेकिन जिनको उसमें कुछ पता ही नहीं है, दे डोंट हैव अ क्लू अबाउट व्हाट वी आर स्पीकिंग, तो उनके साथ ये सब बातें करना थोड़ा मुश्किल होता है, एज माता जी से। एंड फिर ऐसे लोगों को हम अवॉइड भी नहीं कर सकते, बट स्टिल वी हैव टू बी देयर, कॉन्शियसली वी हैव टू बी देयर, दैट वी विल नॉट गेट इन्वॉल्व इन देयर टॉक्स प्रजल्पा में। कई बार ऐसा होता है, जैसे हम फैमिली फंक्शन गए, हम अवॉइड नहीं कर सकते, वी हैव टू गो एंड अटेंड, बट वी हैव टू बी कॉन्शियसली प्री डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग देयर just as a presence. Correct. Now that's okay. That weddings hai, engagements hai. I'm not talking about these kind of family functions. ये तो compulsory है, जाते ही हैं. Let's say an outing, a family holiday. चलो कहीं vacation पे चलते हैं, है ना? चलो कहीं recreation पे चलते हैं. चलो आज एक get together कर लेते हैं. Let's just have dinner together. I'm talking about these kind of optional get-togethers, not the compulsory ones, which are duty types. जो उसमें तो जाना ही है, जन्म मृत्यु, किसी के मरने पे, पैदा होने पे, शादी ब्याह, ये वो तो we are not counting that. But these friends or these relatives or these close family members or even close में sisters brothers भी आ जाते हैं, extended family भी आ जाते हैं, जो कहते हैं चलो एक वेकेशन करते हैं, गोवा चलते हैं, और let's have a dinner together, है ना? और let's make a group, उसके ऊपर let's play ludo, you know, twice a week, something like that, so that we siblings are in touch, है ना? एक बहन अमेरिका में है, एक बहन इधर है, एक बहन उधर है, तो चलो एक ग्रुप बना लिया, बहन है भाई, करना है ना, अपना तो रिश्ता तो रखना है, कजन्स हैं, सारे कजन्स मिलके एक ग्रुप बना लिया, उस ग्रुप पे मिलके चलो सब कुछ खेलते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट दीज काइंड ऑफ सिनेरियो. आर यू गेटिंग द पिक्चर दैट आई एम Yeah, ट्राइंग टू पोर्ट्रे? yes, yes. Now, if you say sorry, no time, तो immediately गाली पड़ेगी प्रभुपाद को. We can't. अच्छा क्या है, अब तुम क्या बहुत बड़े बन गए, हमारे साथ उठने बैठने लायक नहीं रहे, या आपको अब हमारी कंपनी अच्छी नहीं लगती? और so we are not even talking about I'm talking not talking about those compulsory ones or those family functions. We are talking about, because
People need people to enjoy. अकेले एंजॉय नहीं होता. हर नहीं. किसी को अगर मजा करना है, किसी को पीना है, तो वो अकेले नहीं पी सकता. उसको Whether 4 it दोस्त is a ढूंढ के बिठाने हैं, spiritual sangha, अपने सामने whether बिठाने हैं कि तू बैठ और Hmm, मैं पीऊं, राइट? hmm, तो hmm, इसके लिए वो खींचते हैं लोगों को कि मेरे साथ आ, hmm, मुझे घूमने जाना है, तू मेरे साथ चल, है ना? Right. मुझे यहाँ पे शॉपिंग करना है, तू मेरे साथ चल, मेरे को हेल्प मी इन सिलेक्टिंग. और या मुझे ये वाली एक्टिविटी करनी है, तू मेरे साथ चल. क्यों? हम बहन पड़ी है ना. अब इतना भी नहीं करोगे. आई गेटिंग द सिनेरियो. Yeah. Now, most of the time, first in the previous para, so they are saying if you are liking this and you're looking forward to it, then it also shows where you are on the spiritual curve. That is your personal assessment. You will understand कि आप कहाँ हो. ठीक है? दूसरा, अगर आप सीरियस हो और रियली आगे जाना भी चाह रहे हो और आप जेन्युइनली मजा नहीं आ रहा आपको, you would rather be in your own circle कि अरे यार हमारे गेट टुगेदर एक सेवा मिली हुई है, ग्रुप सेवा, I would rather be there, be with them, and we can all do that together, vis-a-vis this kind of an outing with friends or family or even. So how are you going to handle that? Because family hai. And what are you going to say, or what is your take going to be on that? किसकी आवाज आ रही है? अच्छा. So naturally, when one is adapted to the spiritual way of life, he does not want to mix with materialistic men. That would go against his grain. A devotee has no taste for unnecessary sporting. Sporting मतलब घूमना फिरना, हंसी मजाक, बातचीत, phone calls, cinema going, or enjoying some social function, because he understands that these are simply a waste of time. तो जब आपको कोई क्वेश्चन करेगा, बहुत देख लिया आपका ये, हाँ, what kind of spirituality are you following? If you cannot give company to a friend in need, emotional, then how is your spirituality making you a better person? क्या बोलोगे? How are you going to respond to that? Scenario clear हुआ ना? Mataji, there are situations where we can avoid, we must avoid. लेकिन कई सिचुएशन ऐसे होते हैं कि जहां पर हम अवॉइड नहीं कर सकते. एज यू से, कोई अगर एक सिस्टर ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, कोई और कहीं से आ रही है, और सिस्टर्स सोच रहे हैं आज हम गेट टुगेदर करेंगे साथ में, या फिर कहीं एक जगह पे हम मिलेंगे साथ में. एज लॉन्ग एज यू कैन अवॉइड सेइंग एनी ऑफ द रीजन. जैसे कहते हैं ना कि जो भक्त होते हैं वो दे यूज देयर इंटेलिजेंस कि कैसे मना भी कर सके, प्यार से भी, बुरा भी ना लगे टाइप्स. अगर नहीं होता तो फिर माता जी वहां पर जाना पड़ता है. नहीं You have नहीं. to do that. Okay, again let me correct whatever maybe मैं अपना समझा नहीं पा रही हूँ. I'm not talking about unique situations कि कोई 5 साल के बाद अमेरिका से आया तो जाना है. मैं उस तरह की सिनेरियो की बात नहीं कर रही. Okay, हाँ. आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीडे लोकल. Oh. आपके लोकल ही रहते हैं ये लोग, रोज ही आपके साथ टकरा जाएंगे, या आते ही रहते हैं, फ्रीक्वेंटली आते हैं बाहर गाम से. लुक एट दोज सिनेरियोज वेयर इट इज अ पार्ट ऑफ योर एवरीडे लाइफ. Okay. एंड इफ सपोजिंग दे रेज अ फिंगर, आप अपने डिफेंस में क्या बोलोगे? आप क्या, हाउ आर यू गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दैट? वो हर 10 दिन में, हर 12 दिन में बोलेंगे चलो ये करते हैं. अच्छा, पिछली बार मना किया, चलो इस बार चले जाते हैं, फिर अगली बार, कितनी बार, क्या क्या करोगे? What are you going to say, or how are you going to reply when they say कि हमने तो सुना था spirituality makes people a better person, a better human being? तो आप लोग तो फैनेटिक बनते जा रहे हो, तुम छोड़ते ही जा रहे हो दुनिया को, अपने एक शेल में जाते जा रहे हो. What kind of spirituality is this? How are you going to respond to that? First of all, आपके फेथ का क्या होगा?
Because if your faith is shaky, इससे ही हमारा अपना ही faith डगमगा जाएगा. And we'll start wondering, really, am I doing something wrong? So इससे भी हमें पता चलेगा हमारा faith कितना strong है. But if somebody questions you, what are you going to say? It's for all of you, huh? अंजलि, इसने तो विनती ने तो आंसर कर दिया. विनीता, उमा, अंजलि, For हिमांगिनी. me, it is more like to each his own. I honestly don't even try to, because in the immediate family also there are enough people who question all this. कि किस लेवल तक, किस हद तक, हाँ. तो जो ऐसे क्वेश्चन करता है, तो I तो don't even, I would say कि I don't bother also explaining or justifying or trying to convince. But जो थोड़ा interestedly, I mean, it's a very small example. On the dinner table, हमारे घर में, it is the 4 of us having dinner, me, husband, Divij and Vidushi. So Divij specifically is very interested. He likes to hear something कि आज अच्छा आपने क्लास में क्या किया या क्या सुना. So मेरे में भी enthusiasm आता है in trying to tell him. I mean, he was the first person I would go and tell कि यहाँ रथ यात्रा हो रही है, any such things or any such activity happening, या मंदिर में ये है. तो he's the first person who is interested, as well as he cooperates also कि हाँ तुमको जाना है तो I'll ensure and all that. And फिर डिनर टेबल पे ही टेल्स मी कि ऐसे रोज थोड़ा थोड़ा कुछ बताया करो. अब रोज तो मुझे होता भी नहीं है बताने को, बट एक्चुअली आउट ऑफ इंटरेस्ट, तो आई एम ग्लैड टू हियर इट. सो बाकी इन जनरल पब्लिक, इन रिश्तेदारी और इवन वेरी वेरी क्लोज पीपल जो थोड़े आई वुड से जज करते हैं, आई लीव इट एट दैट. आई मीन, दिमाग लगाना ही नहीं. Why should I break my brains in trying to convince? And then the conversation or the back and forth goes on and on. I just leave it to them. I mean, they are my near and dear other people. But छोड़ दो, क्या justify करना, क्या समझाना, कितनी You बार keep quiet. समझा. You keep quiet when they ask you a question? ऐसे? नो, क्वेश्चन नहीं. अगर ऐसे भाई कब तक करोगी या कितनी ये तक करोगी, बाय एंड लार्ज मोटा मोटी, आई मीन टू गिव यू अ लार्जर पिक्चर, दे नो कि करना तो है. अभी तो आई टॉकिंग फॉर माई सेल्फ, मेरी तो डेप्थ अभी तक भी नहीं हुई है. आई एम स्टिल दिस वे. But I don't try to get them around. और जो interested होता है, and I'm so glad it is my own son who does at least like to listen. तो ठीक है, उसको बताती हूँ जितना समझाती हूँ. Like if I have also whatever little tidbits here there जो मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं. Like this class last week and today बहुत सिंपल, वेरी इजीली ग्रास्पेबल एंड लग रहा है, तो आई वुड रिलेट दिस टू हिम ऐसा. तो दिस हैज बिकम अ काइंड ऑफ डिनर रूटीन कि वो पूछता है, मैं को बताती हूँ मोस्ट ऑफ द डेज, ऑफ कोर्स नॉट एवरी डे. बाकी आई थिंक कांट ब्रेक योर ब्रेन विथ एवरीवन. Yeah, I okay. mean, maybe not right the attitude, but that's the way it is. And there is no right and wrong in this. We are all living the best lives we can. So, anything else? सबकी situation unique है. So, आप पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे? That was the question. विनीता होगा? मेरे ख्याल से सबने बोल ही दिया माता जी. मुझे ये लगता है कि अगर हम जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं ना, तो हम इस चीज को अवॉइड कर ही नहीं सकते. बस तो ये है. और दूसरा, अगर अवॉइड करना है तो आपने कभी उनका माना, कभी अपना किया, पहले तो हम ये करेंगे, फिर धीरे धीरे हम उनकी बातें कम मानना शुरू करेंगे, अपनी ज्यादा करना शुरू करेंगे. एकदम से अगर आप उनको मना करोगे किसी को भी कि भाई हमें नहीं आना, तो वो चीज गलत लगेगा. धीरे धीरे इसको अवॉइड कर सकते हैं कि 2 बार हमने अपनी चलाई, 1 बार उनकी मान ली, फिर हमने 3 बार अपनी मानी, 1 बार उनकी मानी. धीरे धीरे करके वो लोग खुद ही, जो रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो समझ जाते हैं कि इसका इंटरेस्ट अब दूसरी तरफ ज्यादा है. जैसे मुझे भी बहुत जगह इनविटेशन या ये सब आता है, मैं बोलती नहीं
मेरी क्लास है, कुछ है, ओहो तेरी तो क्लास है, हमेशा क्लास होती है। शुरू में बहुत ज्यादा बोलते थे छोड़ दे छोड़ दे, अब उसको पता है छोड़ेगी नहीं, तो अब उन्होंने धीरे धीरे कम कर दिया। वो फिर मेरे से पहले ही पूछते हैं तेरी क्लास तो नहीं है, अगर क्लास है तो तू आएगी नहीं ऑब्वियसली, तो इस तरह बात होती है। दूसरा, जैसे आप जिस सिचुएशन की बात कर रही हो, जैसे लोगों के उसमें आते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ भी वो करने के लिए कहते हैं ना कि ये खेले या यहाँ चले, तो हम कह सकते हैं कि हम जिसको फॉलो कर रहे हैं हमें गुरु आज्ञा नहीं है ये सब करने की, तो हम अपने गुरु आज्ञा के हिसाब से ही हम चलेंगे। वो समझते हैं। भगवान से मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों को बहुत डर लगता है, वो कभी आपको पिन पॉइंट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये भगवान के रास्ते पे है, अगर हमने कुछ गलत बोला तो हमें पाप चढ़ेगा। तो वो अच्छा। एक बार दो बार बोलेंगे, थर्ड टाइम वो आपको नहीं बोलेंगे। अगर आप उनको बोलोगे गुरु आज्ञा है या मेरे सीनियर्स की आज्ञा है, मैं अलाउड नहीं हूँ, मैं पूछूंगी, फिर मैं कोशिश करूंगी अगर मैं आ पाई या मैं ये चीज कर पाई, पर मुझे ये सब परमिशन नहीं है ये सब करने की, क्योंकि मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ, तो आप उनको एक्सप्लेन करोगे तो समझेंगे। मुझे ये लगता है। और तीसरा, हमें ये लगता है कि अगर हम इस संसार में, या तो फिर हम इसको छोड़कर हम वृंदावन रहें या सबसे कट ऑफ लेके रहें, तो ही हम इजिली इन चीजों का अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम इधर हैं तो हमें 50-50 करना ही पड़ेगा। आप नहीं कर सकते, कुछ उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, कुछ अपने। बच्चों के साथ भी डेली यही होता है कि जैसे अंजलि कह रही है, हम भी बैठ के बात करते हैं, हम कोई हरि भजन नहीं करते, कुछ नहीं करते, लेकिन हम बात करते हैं, दुनिया की भी बातें करते हैं, फ्रेंड्स की भी करते हैं, बिजनेस की भी होती है, सारी बातें होती हैं। ठीक है, उनमें बच्चों को इंटरेस्ट आता है तो हमें उनके हिसाब से बात करनी पड़ती है। कई बार मेरा मन होता है मैं जाके सो जाऊं या मैं अपना कुछ पढ़ लूं, लेकिन या चैंटिंग कर लूं, लेकिन नहीं कर पाती मैं ये सब, क्योंकि बच्चे बैठे हैं, फैमिली बैठे, तो आप अवॉइड नहीं कर सकते कि हर टाइम आप कमरे में चले गए और अपना आप कुछ कुछ कर रहे हो और बच्चे बाहर बैठे हैं, तो धीरे धीरे वो हमसे दूरी होते चले जाएंगे, वो हो या फैमिली हो या कुछ भी हो। तो 50-50 तो करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा वो भी समझने लगे, कुछ टाइम तो वो भी समझते हैं कि नहीं है, मम्मी या फ्रेंड सर्कल भी समझते हैं कि नहीं है, अब ये तो कोई बात नहीं। पर आप हमेशा नहीं रहोगे तो लोग बिल्कुल छोड़ देंगे आपको, और मतलब बिल्कुल आप कट ऑफ हो जाओगे। अगर आपको पसंद है तो आप 1 मिनट में कट ऑफ हो सकते हो, एक झटके में, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर आपको नहीं करना तो नहीं करना, कोई तीसरी बार पूछेगा भी नहीं आपसे अगर मुझे ये लगता है संभव। हम्म It's a- लोग अच्छा बहुत पॉइंट जल्दी बोला, भूल अच्छा जाते पॉइंट बोला आपने कि हमें गुरु की आज्ञा नहीं है इसलिए नहीं हैं। करना हाँ है, या हमारे बड़ों ने नहीं कहा, हमारे सीनियर्स ने मना किया है हाँ इसलिए आज्ञा नहीं है। दैट्स आई थिंक वेरी नाइस स्ट्रॉन्ग हाँ, पॉइंट यस जो कहा जा सकता है, दैट हाँ। आई विल वो आस्क माय सुपीरियर्स एंड लेट यू नो। सो फॉर दैट नोबडी सेज एनीथिंग के यू नो। थोड़ा मान लो, थोड़ा अपना उनको बोलो ना, तो वो समझेंगे। अगर आप सब कुछ मना करोगे ना, तो वो एक ना वो काउंटर पार्ट शुरू हो जाता है कि भाई हम इसको काउंटर करें। उनको मौके मत दो काउंटर करने का। इस तरह से इस सिचुएशन को लो कि वो काउंटर करने की कोशिश ना करें। आप थोड़ी देर बैठे, इन्वॉल्व हुए, धीरे धीरे कब आप खिसक गए किसी को पता ही नहीं लगेगा। शुरू करा, आप निकल गए उसमें से, है ना। तो ये सब सिचुएशन इस तरह हैंडल होती है धीरे धीरे। हाँ माता जी, एक चीज मुझे आपकी याद आई, जब जब हम लोग आ रहे थे रास्ते में, बस में आ रहे थे, तो माता जी, विनीता उमा माता जी ने ना एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि अगर हम बिल्कुल ऐसे जैसे एक्सक्लूडेड और वो हो जाते हैं ना, तो फिर हम प्रचार नहीं कर पाएंगे। प्रचार करने के लिए भी हमें थोड़ा जो है ना, इंक्लूडेड रहना थोड़ा, पड़ेगा, हाँ, तो इंक्लूडेड। वो ये चीज माता जी की मुझे अच्छी लगी थी। हम हमेशा ये नहीं कह सकते विनीता ना उमा हम माता सही जी। हैं आप गलत हो, नहीं कह सकते। इसको हमें प्रूफ करना पड़ेगा, कहने से नहीं होगा कि हम इस कौन ही सही है या आप यही पूजा करो, नहीं मानेंगे लोग कभी भी, है ना। तो थोड़ा तो मुझे लगता है 50-50 ही चलना पड़ेगा। मेरा तो देखो इसी हिसाब से चला है, मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट धीरे धीरे टीवी में इन चीजों में कम होता गया है अपने आप ही। अब मैं इन चीजों में इतना इन्वॉल्व हो गई, धीरे धीरे अपने आप छूटता जा रहा है, धीरे धीरे। ऐसा नहीं ना मैं जल्दबाजी कर रही हूँ कि मुझे सब कुछ छोड़ना है एकदम से। मैं भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ। अब आज भी मेरी सुबह क्लास थी, सबको पता है मम्मी की क्लास है। धीरे धीरे मम्मी हम क्या कर सकते हैं, आप हमें बताओ। उनको पता है मम्मी उठेंगी नहीं आज बिल्कुल भी, चाय बना लें, हम पापा को दूध दे दे। मैंने बोला पूजा कर लो, तो हस्बैंड ने पूजा भी कर ली, सब कुछ कर लिया। तो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और मैं बिल्कुल एकदम डंके की जोर में नहीं, मैं नहीं करूंगी, ऐसे करना है, तो कोई नहीं मानेगा बिल्कुल। धीरे धीरे चलना पड़ेगा इस चीज के लिए। कभी उनकी भी माननी पड़ती है, कभी कभी मुझे छोड़नी पड़ती है क्लासेस,
कि चलो फैमिली बैठी है, ये बैठा है, तो बहुत कुछ मैं छोड़ती भी हूँ। ऐसा नहीं है कि हमेशा वो करती हूँ, और कभी वो हमारी सुन लेते हैं, दोनों तरह से चलता है। नाइस। तो इमीडिएट फैमिली की तो खैर बात हम नहीं कर नहीं, रहे। मेरे मेरे ब्रदर सिस्टर भी हैं और भी लोग हैं, वो अब धीरे धीरे समझने लगे हैं कि भाई ये नहीं आएंगी या इनको ये सब नहीं सूट करता है। मेरी फ्रेंड्स भी धीरे धीरे अंडरस्टैंड करने लगी हैं। जैसे मैं मना करती हूँ ना, तो वो अंडरस्टैंड करने लगी हैं कि भाई हाँ, इसका अलग इंटरेस्ट हो गया है। उन्हें डर भी लगता है कि कुछ मुझे ज्यादा बोलती नहीं, उनको डर लगता है कि भगवान के रास्ते पे आएगी। ना ये बहुत लोग दिस बहुत इज अ न्यू डरते हैं। पॉइंट आई हर्ड के लोगों को डर लगता है। एक्चुअली लोग बहुत डरते हैं। You have power. You have power. This is new. Nice, interesting. Yeah. So, no, I don't think we are discussing about leaving the world and going, because to change the system, you have to be in the system. नहीं तो प्रचार कैसे होगा? वो बात नहीं हो रही थी, but I think you understood हम क्या discuss हाँ, कर रहे थे. We were yes, not yes. talking about माता जी family and एक fanaticism. बात और कहनी, जो कि मैंने रिसेंटली अभी हुआ था, मेरी कजिन से बहुत दिन बाद मिली थी, तो वो सीधे बस पहली चीज उसने ये इस्कॉन, क्योंकि वो उसको पता है कि आई फॉलो इस्कॉन, तो उसने पहली चीज ये की बहुत कमर्शियलाइज है एंड दे सेल भगवत गीता ट्रैफिक लाइट्स पे और ये वो, और ऐसे करके, मतलब, तो उसको फिर मैंने जवाब दिया था, लेकिन बहुत मतलब बहुत ब्रीफ रिप्लाई दिया था, क्योंकि वो, मैंने ये भी देखा है कई बार कि वो ज्यादा सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते। तो मैंने सिर्फ Yes. यही बोला था कि इस्कॉन, मैंने कहा कमर्शियलाइज नहीं है, और बुक वो, और भगवत गीता या कोई भी बुक वो फोर्स नहीं करते हैं, दे रिक्वेस्ट यू। और मैंने कहा मेरे साथ भी हुआ है कि फिर आप अगर आप नहीं लेना चाहते, तो व्हाट मतलब वो क्या जस्टिफिकेशन दे रही थी कि इतनी होली बुक है और हम जबरदस्ती दे दे। हाँ, मतलब मैंने तो एक बार बोल दिया कि नहीं, इट्स अ होली बुक एंड आई हैव ऑलरेडी गॉट, और वो जबरदस्ती तो मैंने कहा नहीं, ऐसे जबरदस्ती होली बुक नहीं। दिस इज व्हाट शी वाज ट्राइंग टू से। तब मैंने उसको एक ही बात बोली थी कि प्रभुपाद जी का, फिर मैंने नाम लेके ये बोला था कि प्रभुपाद जी का ये इतना सेक्रीफाइस है, एंड ही एक्चुअली, भक्त लोग कोई ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से, आपके अपनी कोई कमर्शियल इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा प्रभुपाद जी ये कह के गए हैं कि मेरा अगर सबसे ज्यादा मेरे को सर्व करना है, तो आप मेरी बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट जितना कर सकते हो करो, ये प्रभुपाद जी कह के गए हैं। मैंने कहा ऐसा अपनी मर्जी से नहीं करते हो कोई भी। तो बस मैंने इतना रिप्लाई दिया था, और उसके बाद जब मैंने क्योंकि शी इज फॉलोइंग सम अदर गुरुजी ऑल्सो, तो वो ये कि फेथ इज पर्सनल, और तो भी है, मैंने तो खैर कुछ उसको ऐसे अपनी तरफ से कुछ बोला भी नहीं था, बट शी हरसेल्फ बिकॉज शी नोस, तो बस मैंने इतना ही रिप्लाई दिया था। तो ऐसा जो बहुत ज्यादा ही वो पहले ही अपनी तरफ से होते हैं, तो फिर मैं एक ब्रीफ रिप्लाई देके एंड देन आई अवॉइड, फिर मैं ज्यादा नहीं उसको वो करना चाहती कि उसको ये ना लगे कि मैं कैनवसिंग, और मतलब वो मैं शायद वो, क्योंकि वो ऑलरेडी कमर्शियल और ये सब बोल रही थी, तो इसलिए मैंने इतना ही बोला। मैंने प्रभुपाद जी का नाम लेके कि उनका सैक्रिफाइसेस बहुत है, और जो आज दिख रहा है और जो इतनी फॉलोइंग है और जो लोग अपनी लाइफ चेंज कर रहे हैं, इट्स उन्हीं का ये इंस्ट्रक्शन है। तो बस इतना ही बोला था मैंने, उसके बाद कॉन्वर्सेशन एंडेड देयर ओनली, नथिंग मोर। Nice. It's a good GD group Correct. discussion. Yeah. Yes, Mataji, Himanshu. I have one experience to share here. Achhi. जैसे आई यूज टू स्टे इन मुंबई नो, तो वहां पे उस सोसाइटी का, आकृति एलिगेंस सोसाइटी का नाम है, तो उनका एक ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप अभी भी है, आई एम द मेंबर ऑफ दैट ग्रुप, जैसे लेडीज ग्रुप है। सो दिस ईयर आई डिसाइडेड माई सेल्फ दैट आई विल नॉट विश अ सिंगल पर्सन बर्थडे विश ऑन दैट ग्रुप। अच्छा. तो मैंने खुद ने डिसाइड किया था। सो फ्रॉम बिगिनिंग ऑलमोस्ट 7-8 months दिस 2025 आई डिडंट विश अ सिंगल person for the birthday. You will not imagine, I didn't get any wish on my birthday. Ah, So it's a reciprocation है ना, मतलब लोग सोचते हैं अरे ये कट हो गई, अब तो इसको क्या विश करना है, correct. and I'm happy with that. Some groups, my school group is there, only उसमें वही चलता है, बर्थडे विशेष ही चलता है। Same here, I didn't wish any of the groups
for the birthday. From there also, I didn't get any wish. So कहना ये है कि once you understand कि, और luckily Prabhupada's mercy, Guru Maharaj's mercy, I don't know whether to call it mercy or no, but we are away from our family basically. फैमिली सब मुंबई में है, हम लोग बैंगलोर में है. तो वंस इन अ व्हाइल कोई आता है तो उनको मुझे सर्व करना है. आई मीन आई हैव टू बी विद देम फॉर 3-4 days लाइक दैट. तो मुझे ये वाला अप्रोच ही नहीं आता कि बार बार कोई बुला रहा है या फिर मुझे कोई मिंगल करना चाह रहा है बार बार. अगर एज एज यू सी कि जैसे हमने श्रीलंका छोड़ा कोलंबो, तभी से एक ही दिमाग में पक्का है कि एसोसिएशन ढूंढो, जहां भी जाओगे सर्च फॉर डिवोटी एसोसिएशन. और आज तक वही किया है. यहाँ आने के गुड़गांव में भी आपने देखा, आप ही के साथ कनेक्टेड थी, तो कोई मैंने वैसे एसोसिएशन बनाया नहीं वहां आकर कि जहां से मैं उनके साथ ग्रुप में ऐड हो जाऊं. सेम हियर, यहाँ पर आके आपने देखा इतनी बड़ी सोसाइटी है, आई एम इन द ग्रुप बट आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स हियर अपार्ट फ्रॉम माई टेम्पल एसोसिएशन. तो मुझे कॉल्स आते हैं तो सेवा के ही आते हैं हमेशा. सो वो वाली सिचुएशन जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा, वो हैंडल करने की मतलब आई डोंट हैंडल सच सिचुएशन कि कोई मुझे करना चाह रहा है इन्वॉल्व और मुझे मना करना पड़ रहा है ऐसे. Right. Chaliye. Thank you everyone for sharing your personal experiences. Acha, Vinti has put a nice heart on the. You liked Himangini's reply, I think. Very nice. So, just to clarify, this question was not to preach that you have to cut off from the society. I don't think we were discussing that, or to cut off from the family or anyone. We were talking about how to handle responses of loved ones, if at all they feel, or friends, if at all they question that spirituality makes you a better person. But I don't see you becoming a better person. I think you're becoming a not so better person. Actually, question ye tha. Not that we have to become fanatic and not talk, and that's not the point, because preachers do everything. Preachers even go to movies because there is one cell that watches movies, so that when they are attacking our culture, movies में भी बहुत questions उठाए जाते हैं, तो उसका जवाब दे सकें, उसके लिए movie देखनी पड़ती है. So, and we need to know what's going on in the world, because then only you can give those examples in your classes and people can correlate with whatever is happening in your life. For example, अभी recently जो crash हुआ है, तो जितने भी अब lectures आजकल हो रहे हैं, everybody gives an example of the plane crash to explain some concept from the Srimad Bhagavatam or the Bhagavad Gita or the Chaitanya Charitamrita. तो वो ज़्यादा समझ में आता है, because वो हमारे immediately at पड़ोस में हुआ है या हो रहा है हमारी life. Yeah, but the question is more about how will you handle people who say that good qualities are not being reflected in you, despite you following a spiritual path. So what kind of spiritual path are you following? That was the point that we were discussing. And this will come because people judge good and bad according to their interest, not according to a standard definition of good and bad. Sabka good and bad ka definition alag hai. And for everybody, it is self-centered. What is in it for me? If there is something in it for me, it's good. If there's nothing in it for me, it's bad, because it's not benefiting me. So it's bad. A lawyer will give you a totally different definition of good. Judge will give you a different definition. Policeman will give you a completely different definition of good. So हर कोई अपने benefit के हिसाब से good की definition बनाता है. And therefore, even if you are giving time to everyone or leading a cultured, quiet, mindful life, still there will be people in the society who will raise a finger on you and say, you're not leading a good life. What kind of, because उनको उसमें उनके लिए शायद benefit नहीं हो रहा होगा उनको. Are you getting the point? So despite being on the good path, you will still be questioned that you're not becoming a better person. So are you really following the right path? What kind of spirituality are you following? And what do you say to that? You will get the answer to that question as we finish this chapter, because one needs to defend the spiritual path that we are on.
We need to know what to say and how to speak up for the philosophy that you are following. Because if you're not able to defend the philosophy that you're following, then it shows that we are a weak link. And we are not clear about what we are doing. We could be anywhere else. Right. So I could not find any point in this third paragraph unless आपको इसमें कोई point दिखाए. Can we 13 के बाद? हाँ जी हिमांगिनी इस paragraph. Mataji, ये दो last two lines है ना, they attract a lot to me that according to Bhagavad Gita, one should make research by philosophical discretion into the nature of the soul. One should make research to understand the self. That is recommended here. Yeah. ये इतना सब कुछ हम जो स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, एज वी ऑल नो दैट ये नाम संकीर्तन जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है, that basically is for nourishing our soul. So here Prabhupada is telling us that first to understand what is the nature of soul, one should make research to understand the self first. So today only I was listening to one of the class, what happens to the soul after death immediately. And there they were talking about the soul, जो गरुड़ पुराण में भी बताया गया है very deeply, that why we are doing it. अगर हम ये सब नहीं कर रहे तो क्या होगा, और अगर हम ये सब कर रहे तो क्या होगा, और how our soul will, क्योंकि अभी तक this soul has this material body to do the things, right? तो अभी हमें सोचना है कि हमें क्या करना है with this material body to nourish our soul. कि हमें क्यों सेवा करनी है, हमें क्यों भक्ति करनी है, हमें क्यों नाम लेना है, what we will get after doing it. क्योंकि everybody want to know the benefits, right? क्या profit होगा मुझे, what I will get after doing it. अगर वो conviction बहुत strongly आता है तो कोई भी business करने में अपना पैसा लगाएगा, right? या फिर वो जॉब करते रहेगा till the age of 58 or 60 because they know the benefit of those things. The same way अगर हमें यही research करें हम कि one should make research to understand the self first. Right. तो आत्मज्ञान जो है वो हमें help out करेगा to understand all these qualities जो अभी इस परपट में हमें बताई जा रही है. Yes, yes. Thank you. So I think that's the point of this paragraph. Number 14. The last line that जो translation में भी है, प्रभुपाद ने लिखा है in the translation of the 12th verse. Translation में अगर आप जाएंगे तो the third line from down. Philosophical search for the absolute truth. Accepting the importance of self-realization and philosophical search for the absolute truth. All these I declare to be knowledge. So ये भी knowledge का एक part है कि आप ढूंढ रहे हो what is the purpose of my life. Not that you are finding out how to increase the lifespan, how to increase, how to make water, how to make food, GMO food, how to prolong sex life. ये भी researches चल रही हैं. ये example दिया प्रभुपाद ने. Okay, next para. As far as self-realization is concerned, it is clearly stated here that Bhakti Yoga is specially practical. As soon as there is a question of devotion, one must consider the relationship between the super soul and the individual soul. Individual and super soul cannot be one, at least not in Bhakti. And the devotional conception of life. This service of the individual soul and the super soul is eternal, nityam, as it is clearly stated. So bhakti is eternal and one should be established in that philosophical conviction. In the Bhagavatam, this is explained. Vadanti tat tattva, vidas tattvam, yajnanam advayam. Those who are actually knowers of the absolute truth know that the self is realized in three different phrases: Brahman, Paramatma, and Bhagwan. Bhagwan is the last word.
Therefore, one should reach up to that platform of understanding the Supreme and thus engage in bhakti of the Lord. This is the perfection of knowledge. So, all the different religions in the world or all the different spiritual practices in the world either follow in these one of these three categories. Some people are only concentrating on the Brahman realization, that nature, God is just nature, Mother Nature. That's Brahman. Paramatma, no, God is not only nature, He is also a Paramatma sitting inside our heart. And we have to make a connection with that Paramatma. That is the next step realization. And the highest realization is no, not only is He Brahman and Paramatma, but He is also the Supreme Lord, who is a person. He is not nature or shunya. He is a person. He has feelings. He has a personality, and he has some relationship with me. And I have a relationship with him. And it's my business to find out what my relationship is with him. And I need to work on that. So either of these three, Brahman, Paramatma, and Bhagwan. So now in the last, he is, so totally I think 14 point निकल के आए हैं. किसी को कोई और point दिखा? अगर आप purport पढ़ते हो, not purport, translation. हमने डिटैचमेंट कर लिया, फ्रीडम फ्रॉम एंटैंगलमेंट, इवन माइंडेडनेस अमिट प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट इवेंट्स. माता जी, एक मुझे ये लग रहा है इसमें ट्रांसलेशन में जो ये वाला है, कांस्टेंट एंड अनअलॉयड डिवोशन टू मी, ये भी एक पॉइंट, ये मुझे लग रहा है ये इस पैराग्राफ का है जो अभी पढ़ा था, सेल्फ रियलाइजेशन और भक्ति वाला, डिवोशनल कंसेप्शन ऑफ लाइफ, सर्विस ऑफ इंडिविजुअल सोल टू सुप्रीम सोल इज इटर्नल नित्यम. तो भक्ति और डिवोशनल सर्विस इज इटर्नल. तो ये मुझे इससे रिलेटेड लग रहा है, कांस्टेंट एंड अनअलॉयड डिवोशन टू मी भी एक इसमें मेंशन्ड है ट्रांसलेशन में. यस, भक्ति रव्य चारिणी वाला जो, हाँ ठीक है, 15 हुआ फिर ये. बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं. One must consider the relationship between the super soul and the individual soul. This is 15, है ना? Right. हाँ. Now the last para. पढ़िए, beginning from practicing humility. बेटा. पढ़ तो मैं विनीता माता जी. अंजलि पढ़ रही हो आप या मैं पढ़ूं? आप पढ़ रहे हो अंजलि माता जी? Okay. Beginning from practicing humility up to the point of realization of the supreme truth, the absolute personality of Godhead, this process is just like a staircase beginning from the ground floor and going up to the top floor. Now, on this staircase, there are so many people who have reached the first floor, the second, or the third floor, etc. But unless one reaches the top floor, which is the understanding of Krishna, he is at a lower stage of knowledge. If anyone wants to compete with God and at the same time make advancement in spiritual knowledge, he will be frustrated. It is clearly stated that without humility, understanding is not truly possible. To think oneself God is most puffed up. Although the living entity is always being kicked by the stringent laws of material nature, he still thinks I am God because of ignorance. The beginning of knowledge, therefore, is amanitva, humility. One should be humble and know that he is subordinate to the Supreme Lord. Due to rebellion against the Supreme Lord, one becomes subordinate to material nature. One must know and be convinced of this truth.
यहाँ पर लास्ट लाइन जो लिखी है, वन मस्ट बी हम्बल टू नो दैट ही इज अ सबऑर्डिनेट टू द सुप्रीम लॉर्ड। यहाँ पे आया है कि वन शुड बी इंटेलिजेंट, नहीं लिखा है ना। वन शुड बी हम्बल टू नो दैट ही इज द सुप्रीम। If one is not humble and is rebellious, so then he'll be a subordinate to material nature. मटेरियल। So we must know the difference and must be convinced of this truth. हाँ जी. So are we done? Last Yes. para mein, what is the conclusion? Humility. One must be humble and must understand that I am subordinate to the Supreme Lord. Oh, it's just like a staircase. ये जितने भी Right. 14-15 qualities है, ये 15 सीढ़ियां हैं. So nicely he has Prabhupada has written. And ये सीढ़ी का जो पहला सीढ़ी है, that is humility. हाँ, humility से ही आप staircase को start कर सकते हो, approach कर सकते हो. So from practicing humility up to self-realization. Self-realization तो last सीढ़ी है. तो हाँ, एकदम से आप पहली सीढ़ी पे self-realization बोल के नहीं चढ़ सकते. For that your quality has to be little humble and submissive. So this process is just like a staircase. Going from ground floor to top floor. Now on this staircase, there are so many people who have reached the first, second, third. कोई first पे ही खड़ा रह गया, थक गया, बोला अब मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है. तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, आप रास्ते में लोगों को मिलोगे जो अपने अपने staircase पे खड़े हैं. कुछ थके हुए हैं कि अभी आगे जाएंगे, कुछ परमानेंटली पार्क हो गए हैं कि अब हमें इससे आगे नहीं जाना, हम संतुष्ट हैं, हमें आगे नहीं जाना है, वी आर हैप्पी, लेट यमराज कम हियर ओनली एंड टेक अस. This is a fact of life. Now on this staircase, there are so many people who have reached the first, second, but unless one reaches the top floor, what is the top floor? कृष्ण भक्ति. Krishnastu Bhagwan Swayam. Bhakti also means अगर ये understanding आपको आ जाए कि भगवान केवल और केवल कृष्ण है, then he is, अगर यहाँ इस stage तक आप नहीं आए हो, then you are still at a lower CD. If anyone wants to compete with God and at the same time make advancement, he will be frustrated. Now, why is Prabhupada saying if anyone wants to compete? इतना बेवकूफ तो कोई है नहीं दुनिया में जो बोलेगा कि मैं तो जी भगवान हूं, मैं उसके साथ मुकाबला करूंगा, मैं भगवान जैसा बनना चाहता हूँ, मैं भी भगवान हूँ, ऐसा तो कोई बोलता नहीं है. But still he is saying कि general mass of people say this. So what exactly, any example that you can think of? Who are the people who try to compete with God? If anyone wants to compete with God and at the same time make advancement, he is frustrated. Who's competing with God? People who think they am the doer, जो खुद को ही मानते हैं कि ये सब मेरे वजह से ही हो रहा है. निर्विशेष, हाँ. निर्विशेष शून्यवादी, पाश्चात्य देश तारिणे. All the nirvisheshvadis, all the shunyavadis are actually competing with God. All the mayavadis who say this whole world is one, is Bhagwan, and I am going to merge into Bhagwan, they are competing with him. Merge with God is what? Competing with God. I am also going to become God. When I merge in you, I become you. This is the meaning. अब डायरेक्टली थोड़ी कोई बोलता है कि हम भगवान हैं, बट आपकी फिलॉसफी बता देती है कि आप कंपीट कर रहे हो या नहीं. यू डोंट इवन रियलाइज कि आप कंपीट कर रहे हो. टू थिंक वन सेल्फ गॉड इज मोस्ट पफ्ड अप. हैं ऐसे कितने सारे गुरुज और बाबाज हैं who clearly say I am महाविष्णु, I am विष्णु का अवतार, I am बुद्ध का अवतार, I am शिवा का अवतार. कितने सारे गुरुज हैं who say this, and उनके followers जो उनको follow कर रहे हैं also believe in this philosophy, इसीलिए तो उनको follow कर रहे हैं. So all of them also will come in this category that they are competing with God. आया समझ में कैसे कि there are people, there are, भरा हुआ है पूरी दुनिया. Although the living entity is always being kicked
by the stringent laws of material nature, still he says I am God. इसका कोई example? What does he mean by people are being kicked? कोई किसी को आके kick तो कर नहीं रहा. माता जी आज एक वो ग्रुप में ही, नंदिनी वाले ग्रुप में एक डायग्राम आया था माया वाला. Yes. तो वो माया तो खैर वो भक्त का उसमें दिखाया है कि वो कैसे माया विल टेस्ट, बट माया अदरवाइज इज आल्सो किकिंग अस, मतलब किकिंग How? एवरीवन. How are people being kicked and yet they are saying I am God? इसका कोई practical example दीजिए. ये वो बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं मटेरियली, लाइक फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा तो स्पेस प्रोग्राम ही है. स्पेस प्रोग्राम में इतना खर्चा करके और क्या क्या वो बनाते हैं, स्पेस शटल बनाते हैं, हम मार्स पे जाना चाहते हैं, मून पे जाना चाहते हैं, और वो कभी तो स्पेस वहीं पे ही स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो जाता है, कभी वो जो उसमें जाते हैं ये एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, ये भी वहां पे दे डाई देयर और दे जस्ट वैनिश. तो ये भी एक तरह का वही है, दे ट्राई टू अचीव सो मच बट दे कांट. एक मटेरियल अचीवमेंट करना चाहते हैं अपनी एक्सपर्टीज के बेसिस पे, बट दे कांट. बहुत कुछ करना, इतने सालों से लगे हुए हैं स्पेस प्रोग्राम में. 1969 में ये कर दिया, मून पे पहुंच गए, लेकिन मून पे पहुंच के दिखा तो दिया, उसके बाद आफ्टर 69 को ऑलमोस्ट 60 इयर्स होने वाले हैं. इन 60 इयर्स उसके आगे क्या, कुछ भी नहीं. सो दे आर लाइक प्रूवन फूल्स, मुझे तो लगता है ज्यादा कि Yes. क्या कर पा रहे हैं, कुछ ऐसा तो कुछ खास. Yeah, thank you. So, although the living entity is being kicked by the stringent laws of material nature. Any example? Latest plane crash, Mataji. Okay. Plane crash is a kick by material nature. Diseases are increasing. That is also a kick. Diseases are a kick by material nature. Very good. What else? What are the kicks of nature? Even COVID, what we went through, everybody went, the world went through, Mm-hmm. was Okay. in trying to tell Right. us that we are really trying to disbalance everything. Yeah, that was also a kick. Kick means beyond our control. जिसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे उसी को किक बोलेंगे. नहीं तो हमने तो अपना पूरा इंतजाम करके रखा है. सिक्योरिटी, घर, छत, बैंक बैलेंस, कॉन्टैक्ट्स, पुलिस के साथ, डॉक्टर के साथ, यही है ना हमारा पूरा मैनेजमेंट. बट इन सब के होते हुए भी अगर हमें किक लग जाए माया की, सो एंड ऑफ कोर्स द बिगेस्ट किक दैट प्रभुपाद ऑलवेज सेज इज जन्म मृत्यु जरा व्याधि, डेथ, बर्थ. कौन आपका बर्थ करके आपके घर में आएगा? यू कैन नॉट, यू हैव नो कंट्रोल. विकलांग होगा, पागल होगा, आप बिना प्लान किए आपके घर में वो पैदा होके आ जाएंगे. दिस इज ऑल्सो मायाज किक एंड यू विल हैव टू डील विद इट. यू कैन नॉट चूज आई वांट दिस काइंड ऑफ बेबी, यही वाला बेबी मेरे घर में आना चाहिए, ऐसे बिहेवियर वाला होना चाहिए. यू कांट चूज. दिस इज मायाज किक. You have to deal with whoever comes to your house in the form of children, husband, relatives, everybody. This is also Maya's kick. And therefore, ये सारी kicks होने के बावजूद people continue to say, I'm God. This is ignorance. इसीलिए वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? To start on the path of God realization, on this CD. सबसे बड़ी visa या qualification to enter into the staircase is amanitva. Amana, humility. Humility means, humility का मतलब ही है accepting that I am small and he is big. इसी को humility बोलेंगे. और जो ये accept करने के ही लेवल पे नहीं है वो इस सीढ़ी पे आ ही नहीं सकता कभी. वो दूसरी philosophies में भी up and down bobbing करता रहेगा. इसीलिए to come to bhakti yoga or to come to even God realization, the first step, as Prabhupada is saying, the beginning of knowledge is humility. Your knowledge will start from humility. So one should be humble, and humble ka matlab hai to accept that you are subordinate and the Lord is supreme. But because we have rebelled against him, everybody says, it is said कि हम सब गोलोक में थे, ऑलरेडी थे. वहां पे कोई किसी चीज की कोई शॉर्टेज नहीं थी, कुछ भी नहीं था.
लेकिन अल्लाह जैसे ब्रह्मा, he also fell down, right? That's how he came into the living material world. So along with him, all of us also fell down. Why? Because we rebelled. अमानित्व वाली quality हमने खो दी, and we rebelled against the Supreme Lord, and therefore we came here. So it's very, very crucial to be humble, and I think it will take a lifetime to develop humility. It doesn't come easy. That I will always be there. So what is humility? We will keep on learning till the last breath. It's not easy. Anyway, so these 15 qualities, 15 and compared to these 5 verses. Okay. And then in the next verse, he will say that I shall now explain the knowledge, knowing which you will taste the eternal Brahman, the spirit, beginningless and subordinate to me, lies beyond the cause and effect of this material world. He is going to first explain about Brahman, then Paramatma, and then about himself, Bhagavan. और तीनों में जो फर्क है, और ये नॉलेज इसीलिए जरूरी है बिकॉज हम सबको मिसकंसेप्शन रहता है कि हम जानते हैं भगवान कौन है, लेकिन हम अपनी फिलॉसफी जब फॉलो करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो पता चलता है हम तो ब्रह्मवादी हैं, हमें पता ही नहीं था कि भगवान इज अ पर्सन, एंड वी वर ट्राइंग टू फॉलो ब्रह्मन और मायावाद, राइट? So thank you very much for today's class. I really enjoyed the group discussion with all of you. Each of you had a very nice personal experience to share. विनीता उमा का मुझे वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि गुरु का नाम लेकर यू कैन से सो मेनी थिंग्स. सबऑर्डिनेट्स कहते हैं, हमारे सीनियर्स कह रहे हैं, तो मैं सीनियर से पूछ के बताऊंगी. And Himangini said that although I don't have any such practical experience in my life, but still I try to give them association rather than take their association, and try to find a balance and serve. And she also tested them, that it's a give and take relationship with the world. You call, they will call. You don't call, they don't call. Simple. तो ये टेस्ट भी करके उन्होंने देख लिया, एंड डजंट मीन कि इनके पास कॉल्स की कमी है. इट्स जस्ट दैट शी इज गेटिंग ऑल हर कॉल्स नाउ आर रिलेटेड टू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. या सर्विस ऑफ द लॉर्ड की अब इनको भंडार भर के कॉल्स आ रही है, नॉट ओनली फ्रॉम बैंगलोर बट फ्रॉम ऑल द अदर बॉम्बे एंड अदर प्लेसेस ऑल्सो. एंड दैट्स व्हाट वी वांट, इजंट इट, दैट वी गेट दीज काइंड ऑफ कॉल्स. और शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई थी विद विनती, where she explained that these are my priorities and I will follow them, and I don't think I need your approval or your opinion to follow what I'm following. This is also very good point, very good way to say that this is what I want in life, and I'm a work in progress, so kindly bear with me. I don't claim to be experienced, or I don't claim to be perfect, but मैं सीख रही हूँ, तो मुझे सीखने दो. That's a very good point. These are all our personal realizations. And my response most of the time is, Acha ji, okay ji. When in doubt, don't say anything. Better not to say anything rather than, say something that's saying that biting more than you can chew. So you can just stay quiet and continue doing whatever you're doing. And if you don't respond only, what can the other person say? Or what can he challenge? वो भी एक response है. Not always, but many times. And Anjali said, what did Anjali say? That she, of course, likes to share it with her family. But she says that I don't give it a thought only. I don't care what they think about me. I just do what I want to do, and I don't wait for their opinion. Isn't it? This is what you said, no, Anjali? Yeah. So these are 5 different kinds of approaches. And I think we can use all 5 in our response in dealing with the world. All of them are good. All of them are very
good responses. And we will need more of these practical tips as we progress forward on this path. So, thank you very much once नीता again. हुआ माता जी का जो पॉइंट था ना 50 कि हम थोड़ी उनकी माने और थोड़ा मतलब एक मिडिल पाथ जो फैमिली के साथ कि दैट्स गिव एंड टेक, दैट्स आल्सो हेल्पफुल मेनी टाइम्स. श्योर देखो, इमीडिएट फैमिली की तो हम इसमें बात कर ही नहीं रहे थे. इमीडिएट फैमिली को तो हमें बहुत डिफरेंटली हैंडल करना होता है. उसमें तो नन ऑफ दीज रूल्स अप्लाई बिकॉज वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम. दे आर अवर इमीडिएट. तो उसमें तो वी हैव टू यूज एवरीथिंग. साम दाम दंड भेद. It's not, we cannot preach there at all, and we have to take care of them. So this was not for actually immediate family members. The discussion was more for second tier of people or the third tier of people in our lives. And how to deal with them. And of course, छोड़ के तो नहीं जाना है किसी को, because we are preachers and we have to be in the most of the gurus say don't go and live in Vrindavan because the preaching is in the cities. So we do not get permission from our gurus to stay in Vrindavan. Our service is in the cities, and that's where we will be. Okay, thank you. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. Thank you for the wonderful class, Mataji. Practical session. Thank you. Yes. Thanks to all of you. Thank you. Thanks to Mataji, each one of you. for such brainstorming. Yeah, we will keep on doing this as we go further. Hare Krishna. Hare Hare Krishna, Mataji. Krishna. Hare Krishna. लास्ट क्लास और ये क्लास अच्छी लगी. ये पूरी 5 वर्सेस अच्छी लगी. हाँ, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल उस पे है ना, फिलोसफी नहीं है इसमें हाँ. ज्यादा, अपना जो हम रिलेट हाँ, करते हैं. एंड डीलिंग तो प्रैक्टिकल करना ही है ना. इस सबको लेकर प्रैक्टिकल हैंडलिंग बिल्कुल है. थोड़ा तुम्हारा थोड़ा मेरा, ये ऐसे बहुत के मुश्किल होता अलावा. है. ज्यादा तो मैं क्या बनता को नहीं बोल, मैं तो खुद भी अभी सब चीजों में हूँ, नहीं छोड़ पा रही हूँ. लोग ना बिल्कुल एकदम एंटी हो जाते हैं, भाई तुम क्यों छोड़ रही हो. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ बिल्कुल समझ सकते समझ हैं. आ रहा है उनको, धीरे धीरे छोड़ रहे हैं वो, लेकिन आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते. और मेरे को तो देखो, बिल्कुल. वनिता के सामने तो बोली नहीं, हमारे घर तो गेस्ट आते हैं तो हमें तो इंटरेस्ट भी आता है, हम तो एंजॉय करते हैं. अब ये थोड़ी कोई हाँ. आएगा तो हम बिल्कुल एकदम एंटी हो जाएं कि हमें तो बस भजन ही करना है. ऐसा नहीं नहीं हो सकता. नहीं नहीं नहीं. और कहीं जाना पड़ता है शादी ब्याह में, ये वो भी पार्टी करता वार्टी है में, कि तो मम्मी के एंजॉय. घर हाँ हाँ. या फ्रेंड के घर जाए, पूरा डे स्पेंड करें, नहीं मन करता देखो, है ना. बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है. हाँ हाँ. पर देखो ऑटोमेटिकली कम तो हो रहा है, ये तो मैं मान रही हूँ. देखो लाइफ से हम्म. ठीक है, सब चलो. वो है. हाँ, थोड़ा धीरे धीरे होता ही जाएगा. अभी हाँ, काम भी इतने पड़े हैं लाइफ के करने के, बहुत. अर्जुन जिम्मेदारियां कहाँ खत्म हुई हैं. वो तो खैर कभी होंगी भी नहीं. और मैं तो कह रही हूँ लाइफ होंगे. गृहस्थी में रह के ही अपने आप को अपना इतना वो कर लो ना, अपना जो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, मैं गृहस्थी शाम में को तो रहकर ही सब बिल्कुल ही कुछ. नहीं टाइम निकाल पाती. बच्चे घर में आ जाते तब मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर पाती. हाँ हाँ. मुश्किल होता है जो उनके एब्सेंस में दिन भर में हो जाता है चाहे हाँ, चैंटिंग चाहे रीडिंग जो हो जाती है, उनके आने के बाद तो नहीं नहीं कर होता. सकते. हाँ, हर किसको अपना अपना कुछ ना कुछ होता है बताने को, शेयर करने को. बिल्कुल. सही बात है. चलो, जितना कर रहे हैं वो भी अच्छा है. हाँ हाँ, एटलीस्ट वी आर बहुत वॉकिंग द पाथ. बहुत अच्छा है. और सब बढ़िया. बढ़िया. नीलम कहती है आ जाओ, अंजलि तो बिजी है, इधर उधर गई हुई है, फ्रूट्स लेने ये लेने. हाँ, कल सब्जी फल ग्रोसरीज ये सब खत्म था, और फिर 4 दिन आज से लेके मेहमान आए हुए हैं. हाँ, तुम 4 बता. दिन. हाँ, हाँ, तो फिर बिल्कुल भरना था कि फल सब्जी सब पड़ा हो, सब बराबर. मील्स वील्स होंगी ये वो. अब है आगे उनके फैमिली में शादी, जाएंगे शादी में तो इतना तो कर ही सकते हैं हम भी. आज हाँ, शॉपिंग पे गए हैं वो लोग.
शॉपिंग पे पूरा दिल्ली मेरोली ये वो सब अब गए रात को हुए हैं आएंगे तो डिनर शॉपिंग। बना के रखोगे, है ना? हाँ डिनर बना के रखी हूँ। और कभी बोलेंगे चलने को, कभी हर किस को अपना भी चाहिए होता है कि भाई अपने से करें, हर किस को अपना भी लगता सही है। बात है। तो आज तो एयरपोर्ट पे उतर के सीधे वो चले गए हैं दिल्ली अच्छा, अब रात को एयरपोर्ट। ही हाँ आएंगे, है ना? रात को ही आएंगे। हाँ फिर कल से का आगे का देखेंगे। मेरे को भी लगा कि चलो आज थर्सडे क्लास तो नहीं मिस हो एटलीस्ट, वरना क्लास मिस हो हाँ जाते ही। हाँ नहीं नहीं, अब तो लेट लेट नाइट ही आएंगे, कोई टाइम वेस्ट नहीं करता बिल्कुल शॉपिंग के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो तुम भी फ्री हो जाओ एक बार इनसे, हाँ मिलते हैं, तब बिल्कुल मिलना, है ना? मिलते हैं। ठीक, हाँ ठीक है। ओके हरे वेरी कृष्णा। गुड, बाय। बाय।